Hello everyone, welcome back to another video from Shomus Biology. In this video, I'm going to tell you an answer to a question that is searched a lot in YouTube. Is it practically possible to cover CSIR Life Science syllabus in a month? Genuinely बता दो यार, ऐसे कोई बताता है कि genuinely बता दो, sarcasm कर रहे हैं यानी yes it is possible, ground reality yes it is possible. And उसके बाद आता है दो चीज, only if you revise or in dreams. I do a lot of sarcasm these days. People may like my videos, may not like my videos. You can give a thumbs up, you can give a thumbs down, but a reality check is really, really important. Solulu is Dilulu is the new trend in Gen Z. The videos are not Gen Z-fied yet. So that's why my channel is not picking up, because my channel is not Gen Z-fied. It is there to give you ground reality. And the reality is that for covering the CSIR Life Science syllabus in 1 month, it is possible if you have prior knowledge to the subject. अगर प्रायर नॉलेज है भाई रिवाइज कर लो, एक महीने काफी होता है रिवाइज करने में. बट if somebody has lacking of a fundamental knowledge of different subjects, different topics of CSIR syllabus, then I would say it is not possible practically. Okay, so I'll give you a blueprint of how to revise like a master, how to revise it in a proper way so that you can cover the syllabus within a month. There is a possibility, you can try scientifically, you can reach to up to certain extent, right? So let's try. So that starts with the CSIR Life Science syllabus in 13 units. But remember one thing, in 1 month if you're preparing, you cannot prepare 13 units. You don't need to master all the 13 units. That's the most important thing about this syllabus. Strategy number 1 for the first month is that the focus on the 7 to 8 units that cover 70% of the questions, and where we have biochemistry, cell biology, molecular biology, plant physiology, genetics, techniques, ecology, evolution. I'll put all this. So these are 8 units that I put. You can put one more unit, that is developmental biology. So total 9 units. If you want to exclude 2 units from here, then I'll exclude plant physiology and developmental biology. Then you'll give 7 units. So 7 to 9 units that you have in your hand. ये 7 से 9 unit आपके हाथ में है. 70% of the questions will come from these units. तो ये यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ना है, राइट? नेक्स्ट इज द 30-day स्मार्ट स्टडी प्लान. कैसे प्लान करना है अपने स्टडी को ताकि आप 30 दिन में इसको कवर कर पाओ. सो whatever it is, whether it is 5 units, whether it is 7 units, or whether it is 9 units, based on that you have this study plan. You need to tweak the study plan a little bit, but this is the overall idea. Week wise plan. Week 1, unit 1, 2 and 3, the foundation concepts comes from biochemistry, cell biology and molecular biology. Without knowing these 3, you cannot prepare the other units, right? ऐसा नहीं हो सकता. तो ये आपको करना है. Next is week 2. You can go with unit 4 अगर आप करना चाहते हो. Like otherwise go with unit 6 and 8. We can go with 8 and 13. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. 13 is for the techniques, 8 is for the genetics. So 8 and 13 is the week 2. And so यहाँ पे मैं change कर देता हूँ. Otherwise you would say that unit 8 and unit 13. Genetics is 8, 13 is unit 13 is technique. And then week 3 is unit 10 and 11, ecology and evolution. That's what you need to do. Unit 4 is full mock test. 4 full mock test plus targeted revision. The revision will comprise of all the notes that you prepared while preparing, and also all the tables, all the charts, all the flow charts, all the diagrams, all the figure legends and all the mind maps, right? So from where you will get the mind maps, remember I always brag about mind maps. Mind maps are the key. Mind maps and table lectures are the keys. Mind map videos are available in my channel. Mind map book is available in Amazon, Flipkart to buy. And we are also making a book. We are also publishing a book soon regarding the tables. So all the subjects and topics will be discussed in the tables, in form of the tables, which will help you to memorize in a much effective way. So these are the 4-week study plan, and each day 3 hours theory and then take some notes. 1 hour of PYQs each and every day. PYQs, previous year's question papers for part B and part C, वो करना है आपको. तो टोटल 4 घंटा देना है, 4 hours a day. लोग कहते हैं मैं तो 8 घंटे दे दूंगा, 10 घंटे दे दूंगा. दे ही नहीं पाओगे, घंटा दोगे. आज के जमाने में तुम 2 मिनट दे के वीडियो नहीं देख सकते. 8 घंटा पढ़ाई में घंटा दोगे, कुछ नहीं होगा. 2 मिनट पढ़ाई में बैठोगे, उसमें एक पॉपअप आ जाएगा, नेटफ्लिक्स में कुछ सीरीज लॉन्च हुआ है, अमेजॉन प्राइम पे ये आ गया है, तुम वहां पे शिफ्ट हो जाओगे. यही होता है भाई. तो ये पता है हमें, यही करोगे. मगर मेरा बोलने का मतलब है, बोल रहा हूं 3 घंटे के लिए थ्योरी और नोट्स, 1 घंटे के लिए पीवाई को सॉल्व करना है. 1 hour फॉर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस. टोटल 5 hours. अगर नहीं 5 hours नहीं होता है तो
3 घंटा दो, तो देखो 1 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो, अब भाई उसमें दिन में 2 घंटे दोगे तो कैसे चलेगा? सो 30 days 2 hours a day से 60 hours is not enough. 30 days 5 hours a day is 150 hours. So more than 150 to 2 hours टाइम फ्रेम देना पड़ेगा टोटल सिलेबस को जानने में, पहचानने में, उसको कवर करने में। इनफैक्ट उसमें से 6-7 यूनिट को कवर करने में यू नीड टू गिव दैट 100 hours to 200 hours और टाइम फ्रेम, राइट? वो देना है। इट्स ऑल अबाउट वेरी बेसिक थिंग, यू नो। जब हम कुछ खाते हैं बेवरेज, उसमें हम चीनी डालते हैं, शक्कर मिलाते हैं ना, शक्कर जितना मिलाओगे उतना मीठा होगा। तो जितना शक्कर उतना मीठा, सिंपल सी बात है। जितना टाइम दोगे उतना रिटर्न आएगा। तुम कोई सुपर कंप्यूटर तो हो नहीं, सुपर ह्यूमन तो हो नहीं, तो यहाँ पे कम टाइम देने से ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। ये वीडियो हम सुपर ह्यूमन के लिए बनाया भी नहीं रहा है, राइट? एंड यू कैन नॉट यूज एआई इन द एग्जाम, सो वो सब हटा दो, ठीक है? ये चीज याद रखना। एंड द third thing that I want to say is the real danger, and that is the negative marking, brothers. Negative marking are the real dangers here, brothers and sisters, whoever watching this video. Negative marking is a huge deal. अब negative marking for part A and B, the negative marking is minus 0.5, half number negative marking extra deduct होता है। और part C में 1 नंबर एक्स्ट्रा डिडक्ट होता है। अब लोग कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा तो 1 ही नंबर डिडक्ट, अबे 1 नहीं। अगर 25 क्वेश्चन किया उसमें से 20 करेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 नंबर डिडक्ट होगा, एक्स्ट्रा 5 डिडक्ट होगा। बाकी जो 5 का आंसर किया था 20 नंबर, वो भी तो माइनस होगा, तो टोटल माइनस 25 होता है। 25 की 4 मार्क्स के आंसर में 100 की मार्क्स के आंसर किया, उसमें से कितना 75 ही हो गया तुम्हारा स्कोर, है ना? इसका मतलब कितना माइनस हुआ? 25, 5 नहीं 25। ये चीज दिमाग में कुछ लोगों का घुसता नहीं है। जिन लोगों का घुसेगा नहीं उन लोगों का अगले जो ये अपकमिंग नेट है होगा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर घुसता है तो थोड़ा थोड़ा होने की चांसेस है। नाउ द नेगेटिव मार्किंग, व्हाई इट्स रियल डेंजर, लेट्स सी। यहां पे आ जाते हैं स्ट्रेटेजी। सो देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल 1 पे। दिस स्टूडेंट ओनली आंसर्ड questions which that student is kind of 90 to 100% sure। तो वहां पे 15 अटेम्प्ट किया पार्ट ए में, 13 करेक्ट हुआ, 2 रॉन्ग हुआ, उसमें से 25 मार्क्स मिल गया। इन पार्ट बी 35 अटेम्प्टेड, 30 करेक्ट 5 रॉन्ग, उसमें से 57.5 स्कोर आ गया। इन पार्ट सी 25 अटेम्प्टेड, 20 करेक्ट 4 रॉन्ग, सो उसमें से 75 आ गया। सो टोटल स्कोर दैट पर्सन गॉट इज 157.5 मार्क्स। सो अप्रोक्सीमेटली 158 का जो स्कोर है वो अचीव हो चुका है स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट हुई स्ट्रेटेजिक इनफ गॉट दिस मार्क्स अराउंड 158 मार्क्स, अराउंड 158 मार्क्स they got, right? That is the real deal. That's a student, that's a strategic student we're talking about. Next is the overconfident guesser. The overconfident guesser on the other hand, उनको सब आता है। सब आता है मतलब कोई भी क्वेश्चन देखो उसको लगता है कि जो उसको लग रहा है वही सही है। इनफैक्ट वो रिपोर्ट भी करता है। हमारे यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंड मेनी ऑफ देम दे रिपोर्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन। दे सेड दैट व्हाटएवर ऑप्शन दे थॉट इज करेक्ट, सो दे रिपोर्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन। यहाँ पे पैसा नहीं लगता रिपोर्ट करने में, मगर इन CSI एंड नेट फॉर रिपोर्टिंग एवरी सिंगल क्वेश्चन यू टू पे हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। तो वहां पे तो लोग नहीं करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट गेसर क्या कर रहा है? 10 क्वेश्चन किया, 5 रॉन्ग हुआ पार्ट ए में, दैट्स गोइंग टू गेट 17.5। इन पार्ट बी 22 करेक्ट, 13 रॉन्ग्स, 37.5। पार्ट सी 14 करेक्ट, 11 रॉन्ग, सो इट गेट 45। सो टोटल मिलाकर होता है 100। 100 इज नॉट इनफ टू रीच द JRF कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इस बंदे को 100 मिला, यहाँ पे इसको 158 मिला। 158 इज मच मोर देन यू रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर JRF इन जनरल कैटेगरी ऑफ CS एंड लाइफ साइंस। तो वहां पे मिल जाएगा, रैंक भी अच्छा मिल जाएगा, 1 से 20-30 के बीच रैंक भी आ जाएगा, राइट? सो इसमें द एग्जाम्पल 2 will not get anything at the end, right? अगर सारे क्वेश्चन करेक्ट करता, 10 में से 10 करेक्ट होता तो कुछ हो सकता था। यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूं कि if 10 are correct, so it will get 20. If 22 are correct, get 44. Okay, and here if 14 are correct, right? So 56. If nothing was wrong, then this person would have got 120. 120 would have fetched that person a JRF, but ultimately it's getting 100. So minus 20. और वो क्यों हुआ? 20 नंबर माइनस क्यों हुआ? 20 नंबर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में 20 नंबर गवा बैठे, राइट? यहाँ पे भी नंबर डेबिट हुआ, मगर कितना? 5, 7.5, 8.5 नंबर ही डेबिट हुआ। द पर्सन विद स्ट्रेटेजिक, द स्टूडेंट विद स्ट्रेटेजिक एंड टुक only answered and took the bet on the confident answers only have
नियर अबाउट -8 to -10 तक पकड़ लेते हैं, 8 से 10 मार्क्स ही डेबिट हुआ टोटल। मगर जो ओवर कॉन्फिडेंट गेसर है उसको 20 से 25 या फिर 30 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है नेगेटिव मार्किंग में। तो नेगेटिव मार्किंग तुमको हरा देगा हर बार। तो व्हाट यू नीड टू डू फॉर द सर्वाइवल टिप्स ऑफ द 30-day स्टडी प्लान, स्टार्ट विद द यूनिट्स यू आर फेमिलियर विथ, दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये होता है कि जो टॉपिक हम फेमिलियर होते हैं ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाते हैं वो टॉपिक्स, इसलिए मैं कहता हूं अगर जूलॉजी से हो तो यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 5, यूनिट 9, unit so yeah, these are the units that will be very good for the zoology candidates. For modern biology candidates like biochemistry, molecular biology, cell biology, microbiology, biotechnology candidates, उसमें से unit 1, 2, 3, 4, 13 ये सब उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है। 12 these are more common for them. So depending upon your subject and stream that you mastered, based on that you can start initiating with the easy topics, then solve PYQ unit wise, focus on the trends and not the random MCQs. Random MCQ solve करने में मतलब अंधेरी में अंधेरा में आप कुछ थ्रो कर रहे हो उसके बराबर होता है। अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग इन द एग्जाम, स्पेशली इन पार्ट सी। पार्ट सी में गेस करना ही नहीं है भाई, करोगे तो डूबोगे। टारगेट 85 to 90% एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी लेवल 85% के ऊपर ना जाता है तो आपको क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इन सीएसएन नेट एग्जामिनेशन इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक एग्जाम। एक्चुअली इट्स नॉट दैट अनप्रेडिक्टेबल, इट्स नॉट एट ऑल अनप्रेडिक्टेबल। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पिछले 10 साल के एग्जाम पेपर देख के बहुत आसानी से सीएसएन नेट को प्रेडिक्ट किया जाता है, बट it is all dependent on the strategy that you built. It all depends on the focus and the perseverance of the students for the preparation. वही सबसे important होता है। Revise using mind maps and flashcards in the final week. मैं चीख चीख चिल्ला के बोल बोल के थक चुका हूँ। Mind map, flashcards, flow charts, ये सबसे पढ़ो। वो किताब पढ़ने की टाइम अब नहीं रहा है, particularly for an exam where you're preparing. The time is much limited. The time is 3 months or a month or something like that. You need to फॉर्म चार्ट्स विच आर विजुअली अपीलिंग, जो पढ़ने में आसानी हो और ज्यादा दिन तक दिमाग में रहे। एंड फ्लैश कार्ड्स एंड माइंड मैप्स आर सपोज टू बी देयर इन योर माइंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और दिस आर साइंटिफिकली प्रूवन, आप सर्च करके देख सकते हो। एंड वी हैव अ CSI माइंड मैप, द ओनली वन माइंड मैप बुक दैट विल गेट ऑफ इट्स काइंड, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon and Flipkart for sale. Give at the 4 full mock test before the exam day. एक्चुअल एग्जाम देने से पहले आपको 4 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब फुल मॉक टेस्ट 2 से 3 आप दे सकते हो, या फिर 4 हो तो और बेहतर, 5-6 हो तो और बेहतर। द मोर मॉक टेस्ट दैट यू अटेंड, that is a real exam like situation that you need to create, right? A person can never learn swimming बाय वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब वीडियो देख के स्विमिंग सीख नहीं सकते। आप जान सकते हो कि स्विमिंग में ये इस तरफ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए, मगर स्विमिंग सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा भाई। और उतरने के बाद आपको ना वो सारे रटे रटाए ज्ञान आपको गायब हो जाएगा। वो आपको पानी सिखाएगा स्विम, तैरना कैसा आता है, राइट? पानी के साथ आप जितना टाइम बिताओगे उतना आसानी से आप स्विमिंग सीखते हो, राइट? यहाँ पे वही बात है, जब आपको आंसर करना है क्वेश्चंस, तब सिर्फ किताब पढ़ने पे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू नीड टू डू द प्रैक्टिकल थिंग। व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन यू विल रियलाइज दैट यू हैवंट सॉल्व्ड मेनी थिंग्स, यू हैवंट अंडरस्टूड मेनी थिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, वो चीज पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो चीज पढ़ो। दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन ड्रिवन अप्रोच, and this approach will help you to realize and understand much more concepts and newer concepts that you haven't prepared earlier. With these concepts you will be well equipped and ready to attend the exam even after a preparation of 1 month. मगर एक बात फिर मैं बताता हूं, ये प्रिपरेशन 1 महीने में तभी पॉसिबल है अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नॉलेज है इस टॉपिक पे, सिर्फ रिवाइज करना चाहते हो। अदरवाइज अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो 1 महीने में भूल जाओ। कोई भी कहे मत मानो, होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 13 यूनिट्स 30 डेज एग्जाम आएगा, प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, not possible boys. So that's all for this video. If this video helps you even a tiniest percentage, then please let us know in the comment section. Hit the like button, share this video with your friends and colleagues, subscribe to our channel to get more and more videos like that so that your preparation gets easier with time, and also mention which part of the video, which tips of the video is going to help you, which tip you didn't like,
And if you have anything else to say, if you have any better approach to follow, then please mention that in the comment section too, so that our subscribers benefit from your knowledge. Thank you. I'll see you in the next video.